Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are well. Students, as you all know that we have started this chapter metals and non-metals, where in your previous lecture I have given you an introduction about it. Also, we have discussed particularly what are metals and all, right? So today what we are going to discuss is about the physical states and characteristics of metals and non-metals. So let's start our today's topic about physical states of matter and where metals and non-metals, where do they exist at room temperature. Okay, so the first topic is physical states. Now we all know that matter exists in three states, like what? This is solid, liquid or gas. But when we talk about metals and non-metals, so since we are studying this chapter, we need to bifurcate them into two different parts, whether metals exist in solid or liquid or gaseous state, and non-metals, do they exist in solid, liquid or gaseous state. So let us try the differentiation point, metals and non-metals. Okay, so when we talk about physical state, so usually all metals, they are in what solid state at room temperature. Why we take at room temperature? Because see, whatever physical state has to be identified. अगर हमें कोई भी physical state identify करना है of a metal or a non-metal or any particular substance, okay, तो हम रूम टेम्परेचर पर देखते हैं कि रूम टेम्परेचर पर उसका स्टेट कौन सा है, then we refer to that particular state. So at room temperature all metals exist in what? Solid state. All metals are in solid form. Okay, they are in solid form. For an example, if you take copper, okay, if it is not visible, I'll just turn this side. Okay, this is copper, then we have aluminium, then we have magnesium, or we could say silver or gold, okay, and many more metals are there. Now this is the symbolic form. You might have studied in your 7th standard as well, okay, when you have studied the chapter acid and bases. This was there when you need to find out this particular symbol is of copper, this is of aluminium, short form of aluminium, or I could say symbol of aluminium. These all are elements and these are the symbol of elements. So this stands for magnesium, this stands for silver, and this stands for gold. आपको इसका original name, that is the Greek name or English name, that you need to find out. Okay, then you will be able to understand what particular metals and what particular non-metals exist at or I could say in which state. Okay, so these all metals, they exist in what? In solid state, right? But as I told you, there will be certain exception. In every metal and in every non-metal there will be exception. So here in metals there is an exception. And what is the exception? Mercury. Okay, mercury and gallium. Gallium. These two metals, they exist at liquid in room temperature, liquid state. Okay, they are in liquid form at room temperature. सब जबकि ये दोनों क्या है? मेटल्स है, लेकिन ये कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, जबकि बाकी सारे मेटल्स किस में हैं? वो सॉलिड स्टेट में या सॉलिड फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट करते हैं. अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, सो यूजुअली द नॉन मेटल्स, they will be mostly at solid state or in solid form आप लिख सकते हैं. Okay, so usually they are at solid form or they will be in gaseous state. Okay, या तो solid form में होंगे mostly या तो फिर gaseous form में. Like for an example, if you take sulfur, if you take phosphorus, if you take iodine, they are solid at room temperature.
okay. But on the other hand, hydrogen, oxygen, nitrogen, they all are what? They are gaseous at room temperature, okay. So सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन ये कैसे हैं? ये सॉलिड है, नॉन मेटल्स है लेकिन सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये क्या है? ये गैशियस है एट रूम टेम्परेचर. अब यहाँ मैंने कार्बन क्यों नहीं लिखा है? देखिए, अगर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है तो वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली कार्बन की बात करें, है ना, तो कार्बन कंटेंट हमें कहाँ से मिलता है? दैट वी गेट इट फ्रॉम कोल मोस्टली, है ना. हमारा जो सोर्स है मेन कार्बन का वो कौन सा है? कोल, विच इज़ अ वॉट? वुड, ओके. एंड आई वुड ये जो आपने पढ़ा होगा कोल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इस चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा कि कोल इज़ द मैच्योर्ड फॉर्म ऑफ अ वुड, है ना. तो ये बहुत लंबी प्रोसेस से बना हुआ एक पर्टिकुलर फॉसाइल फ्यूल है. सो जहाँ हमें कार्बन मिल रहा है वो कौन सा कंटेंट है? हमें कोल से मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ कार्बन को मेंशन नहीं किया है. सो यहाँ कुछ जो नॉन मेटल्स है दे विल एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म एंड सम विल एग्जिस्ट इन गैशियस फॉर्म. बट हियर ऑल्सो देयर विल बी एन एक्सेप्शन. नाउ दिस इज द एक्सेप्शन, ओके. What is the exception? Which will be, see, bromine, okay. Bromine will be, this is bromine is a non-metal and it exists at liquid in room temperature, okay. ये क्या करता है? रूम टेम्परेचर पर आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है. तो ये है तो एक नॉन मेटल, या तो इसे सॉलिड में होना चाहिए या तो गैशियस फॉर्म में, लेकिन ये किस में है? लिक्विड. तो ये एक एक्सेप्शन है. सो हमने दोनों ही पढ़े हैं, दोनों ही स्टेट में. देखिए, मेटल्स में मोस्टली दे आर एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन. यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ आयरन. देयर आर मेनी मेटल्स दैट आर that exist in solid state at room temperature, but mercury and barium they exist in liquid state. That is why this is an exception, okay. On the other hand, usually all the non metals they either will be in the solid state or they will be in the gaseous form, right. So some of them are in solid form and at room temperature, and some of them will be at gaseous state, okay. But here is an exception, that is bromine, okay. So this was about the physical state. Now we all know that certain particular metals they have shine, they have a property to shine, okay. Like for an example हम देखिए ना, तो सिल्वर को आपने देखा होगा, सिल्वर देखा है ना आपने. सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है ना. ये मेटल्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपने सुना भी है और पढ़ा भी है. तो ऐसे पर्टिकुलर मेटल्स जिनकी प्रॉपर्टी क्या है? टू शाइन. नाउ दिस टू शाइन, दिस प्रॉपर्टी टू शाइन इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज लस्टर. व्हाट डू वी से? वी से इट लस्टर, ओके. मेटल्स. So luster means what? Which it means to shine, okay. It means shine. Now most of the metals, or usually I would say all the metals, they do have shine, this property luster. But the thing is that some metals are more lustrous and some metals are less lustrous. यानी कुछ metals जो है वो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, कुछ जो है वो बहुत कम शाइन करते हैं, ओके. तो अगर हम बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले मेटल्स की बात करें तो उनमें सबसे पहले नाम आता है हमारा सिल्वर, फिर आता है गोल्ड, फिर हमारे पास है प्लैटिनम, ओके. फिर अगर हम बहुत सारे मेटल्स देखें तो देखिए कॉपर की भी अपनी शाइन है, एल्यूमिनियम की भी अपनी शाइन है, लेकिन ये तीन जो है ना, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, दे हैव दिस लस्ट्रस प्रॉपर्टी. दे शाइन इन अ वेरी डिफरेंट वे, है ना. बहुत अलग तरीके से वो शाइन करते हैं. दैट इज द रीजन वेयर दे आर यूज्ड इन ज्वेलरी मेकिंग, ना. ज्वेलरी मेकिंग में पर्टिकुलरली यूज होते हैं, या फिर डेकोरेटिव आइटम्स में, ठीक है. डेकोरेटिव पीसेस भी हम बोल सकते हैं. तो इसीलिए इनका पर्टिकुलर यूज है, okay. So most of the metals they do shine. For an example here sodium and potassium, ठीक है. सोडियम एंड पोटेशियम
मैं इनके हमेशा सिंबल ही लिखती हूँ, आपको फाइंड आउट करना है कि इनका ग्रीक नेम या इंग्लिश नेम क्या है। ओके, सो सोडियम एंड पोटेशियम दे हैव अ वेरी लेस शाइन. Now why, what is the reason behind this? Why do they have very less shine? See, because a layer of oxide get deposited on it. क्या होता है उस पे, एक ऑक्साइड की जो लेयर है ना, वो डिपॉजिट हो जाती है इस पर. अब ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट होना मतलब क्या, इसके ऊपर एक तरीके की कवरिंग या फिर हम उसको रस्ट जैसा बोल सकते हैं. तो एक कवरिंग आ जाती है जिसकी वजह से इसकी शाइन जो है वो बहुत फीकी हो जाती है तो इनमें भी, लेकिन कम है. ओके, इसके कंपैरेटिवली अगर हम कॉपर एल्यूमिनियम को देखें तो क्या आएगा सबसे ज़्यादा इसमें, देन कॉपर एंड एल्यूमिनियम. ओके, देन सबसे लेस इसमें आएगा सोडियम पोटेशियम में. तो मेटल्स दे do have this property of lustrousness, but some are having more shine, some are having less. Okay, so this was about metals. Let's talk about non-metals. See, all non-metals, they do not shine. Okay, so non-metals are what? Are non-lustrous. Now when we say they are non-lustrous means what, they do not shine, है ना, यहाँ पर ये शाइन नहीं करते. लेकिन यहाँ इसका एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है. ठीक है, अब एक्सेप्शन क्या है, दैट इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट कहाँ देखने मिलेगा आपको, आपकी पेंसिल की जो निप होती है ना, नोक होती है, दैट इज ग्रेफाइट. एंड दैट ग्रेफाइट इज हैविंग अ वेरी लेस शाइन. You can see a very little shine on graphite. So this is exception. अगर हम बाकियों को देखें, अगर हम वुड, प्लास्टिक है ना, इनको देखें, चौक को देखें, सोडियम, सल्फर या आयोडीन को देखें, इनमें किसी तरीके की कोई शाइन नहीं होती एक्सेप्ट ग्रेफाइट where the particular batteries or electrodes are used, so they have a little shine. We can see a little shine in them. So this is important, the point luster, which means the property to shine. Okay, where they have this lustrous property in them. That is the reason they are used in different particular purposes. Okay, the next that we are going to study is about malleability. So whenever this malleable, okay, this term, देखिए आपके पास अब उस चैप्टर में बहुत सारे आपको वर्ड्स ऐसे सुनने मिलेंगे जो आपके लिए न्यू है ना, लेकिन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज दैट विल बी very much helpful in the 9th-10th standard also, because the same chapter metals and non-metals you will be studying in 9th also some part, and you will be studying in 10th also. So this property, whether it is malleability, to be malleable, luster or lustrous, ductile, sonorous, ये जो words हैं है ना, ये बहुत ही, ये terms बहुत important है with respect to this chapter metals and non-metal. अगर आप मेटल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सारी उनकी कैरेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं जो उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ जुड़कर आते हैं. ओके, और उसी के बिहाफ पर उसकी यूजेस जो है वो डिसाइड होते हैं. तो ये जो टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन करके रखिए अपने पास, है ना, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. इन बुक देयर इज पर्टिकुलरली definition is given that we are going to study, but let us first understand what does it mean actually and where it is used. Okay, so next is what, malleable. Okay, or malleability I would say. So this is the property, or I would say this is a very specific or special property of metals, to be converted into thin sheets when beaten. What I am saying, see, this property is very special. Why and very specific? Because this malleable, all the metals, property of metals, this property of metals, they get converted into long thin sheets when beaten.
ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप मेटल्स को क्या कर सकते हैं, एकदम लॉन्ग थिन शीट्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं उनको बीट करने के बाद। अब इसको आप कैसे समझेंगे, देखिए इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपके पास अगर कोका कोला की कैन है ना, कैन आप पीते होंगे, तो उस कैन का जो ऊपर का कवर है उसे रिमूव कर दीजिए, उसके बाद उसे कट करिए और कट करके उसको बीट करिए, है ना। आप जब उसे बीट करेंगे यू विल गेट अ वेरी थिन शीट ऑफ दैट कैन, ओके। सो दिस पर्टिकुलर मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग थिन शीट्स व्हेन बीटन, व्हेन यू आर बीटिंग इट विथ अ हैमर, तो आप हथौड़े से उसे बीट करना शुरू करते हैं, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इनटू वेरी लॉन्ग थिन शीट्स, ओके। अब इसको और एक तरीके से आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए आपके पास, आपने कई बार इंडियन स्वीट्स खाए हैं, है ना, तो इंडियन स्वीट्स में आपको सिल्वर फॉइल दिखता होगा, सिल्वर फॉइल होता है, ओके, या आपके पास में गोल्ड फॉइल भी होता है ना, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, बहुत ज़्यादा, और शुरू से ही है हमारे यहाँ। देखिए आप मिठाइयों के ऊपर सिल्वर कलर की कवरिंग की जाती है, जस्ट टू यू नो ऐड दैट रिचनेस टू दैट, है ना, उसको एक रिचनेस देने के लिए हम उसको ऐड करते हैं। तो सिल्वर कलर की फॉइल्स आपने देखी होंगी, गोल्ड फॉइल देखा होगा, गोल्ड कवरिंग देखी होगी, तो ये कहाँ काम आते हैं, ये उन पर्टिकुलर स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए काम आते हैं, है ना। अभी ये बहुत ज़्यादा, जैसे आप कभी आपने कोई यू नो कुकरी शोज़ वगैरह देखे होंगे, उसमें भी आपने देखा होगा कि इनको एज एन डेकोरेटिव पीसेज, जस्ट टू ऐड दैट रिचनेस टू इट वी यूज़ सर्टन पर्टिकुलर फॉइल। अब ये क्या है, सिल्वर भी एक मेटल है, गोल्ड भी एक मेटल है, एंड दे आर बीटन इन सच अ वे दैट दे आर बिकमिंग इनटू थिन शीट्स, है ना, उसको बहुत छोटे छोटे शीट्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया, बहुत नाजुक से, बहुत ही डेलिकेट से शीट्स हमें दिखते हैं, जिससे आप उसको टच भी करेंगे दे विल स्टिक टू योर फिंगर, राइट। सो दीज आर वेरी डेलिकेट। एक और आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा जिसमें आप एल्यूमिनियम फॉइल, मैं आपको बोलती हूँ, है ना, एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल कहाँ देखा है आपने, फूड पैकेजेस के लिए यूज होता है ना, फूड पैकेजिंग के लिए यूज होता है। जनरली आप जो भी खाना या पराठे या सैंडविचेस जो है उसको आप कवर करते हैं इन फूड पैकेजिंग के लिए एल्यूमिनियम फॉइल को, है ना। ये बहुत कॉमन है, अभी तो बहुत सारे घरों में हमें देखने मिल जाता है। Apart from using a newspaper or except using a newspaper, we prefer this as it keeps the food in a very hygienic way, and also it keeps you know, for a longer time, for a longer duration, as it is, for I would say as warm as it is, okay। तो खाना उतना ही गर्म रहता है और लंबे समय तक हाइजीनिक रहता है, इसलिए एल्यूमिनियम फॉइल्स का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह में भी देखें तो कॉपर की शीट्स जो है वो यूज़ की जाती है, पर्टिकुलरली वायर्स के पास, है ना, वायर्स को लपेटने के लिए यूज़ की जाती है, उसको कवर करने के लिए यूज़ की जाती है। सो मेटल्स हैव दिस प्रॉपर्टी malleability, you know, they are so malleable that they can be converted into very thin sheets, okay। समझ रहे हैं आप, इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, that all the metals have this property, they are so malleable that they can be converted into long thin sheets when beaten। जब इन्हें बीट किया जाता है तो बहुत ही लंबे से बहुत ही थिन शीट्स में इन्हें कन्वर्ट किया जाता है। अब अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, है ना, तो अगर नॉन मेटल्स में को देखें हम, तो दे ऑल आर व्हाट, दे आर ऑल, और आई वुड से दे ऑल आर नॉन मेलिएबल। दे ऑल आर व्हाट, दे आर ऑल नॉन मेलिएबल। क्यों नॉन मेलिएबल होते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आपके पास सपोज करिए चॉक है ना, इफ आई स्टार्ट हैमरिंग अ चॉक, व्हाट विल हैपन, इट विल ब्रेक इनटू सेवरल पीसेस, है ना, इट विल गेट ब्रेक इनटू सेवरल पीसेस, राइट। सेम विल हैपन टू वुड ऑल्सो, वुड इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, ओके। सो ये क्या होगा, वापस से पूरे
ब्रेक हो जाएगा किस में, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में. सेम हैपन्स विथ सल्फर ऑल्सो, सेम हैपन विथ आयोडीन ऑल्सो. इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक ऑल्सो, प्लास्टिक इज ऑल्सो अगेन अ नॉन मेटल, एंड इफ यू स्टार्ट बीटिंग अ प्लास्टिक, व्हाट विल हैपन, इट वोंट गेट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, इट विल गेट क्रश्ड, है ना. अगर आप किसी प्लास्टिक को, सपोज करिए इस प्लास्टिक को आपने हैमर करना स्टार्ट किया, ये देखिए ये क्या होगा, ये मोल्ड होगा, है ना, ये क्रश हो जाएगा. ठीक है. सो जब हमने थर्मोप्लास्टिक पढ़ा था वो क्या था, वो उसे कन्वर्ट हीट करके पूरा किया गया था. हम यहाँ पर हैमरिंग की बात कर रहे हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हीटिंग अ थिंग एंड हैमरिंग अ थिंग, है ना. बीटिंग अ थिंग, किसी चीज़ को पटक पटक के बीट कर कर शीट्स में कन्वर्ट करना और उसे बर्न कर कर हीट कर कर करना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ओके. यहाँ हम बात कर रहे हैं मिलेबल होने की, यानी किसी चीज़ से बीट करने के बाद उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट करने की. तो यहाँ प्लास्टिक जो है अगर आप उसको करेंगे तो वो क्रश हो जाएगा, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होगा. सो नॉन मेटल्स दे ऑल आर नॉन मेलेबल, they do not have this property to be get converted into long thin sheets. Okay, so this was all about today's topic. There are several topics that we need to study during this chapter, and all of them are really very very important with respect to your higher classes also. Okay, so note down each and everything right from the beginning that I have told you, all the particular names of elements, their exceptions, whether the metals are having this lustrous property or not, they are malleable or not, which state do they exist at room temperature, everything that you need to note down in your notebook. Okay, I hope that you have understood today's topic. I'll meet you in the next lecture. Good day students, take care.